Okay. So last time, if you remember, we had discussed call by reference. Did we discuss that with your batch? Call by reference. What is call by reference? What is call by value? What is call by reference? Yes, we had done with array, right? Object भी हुआ था. So call by reference. Okay, how do you spell that? So what happens in call by value? Whatever changes happen, they happen on a duplicate. The original remains unaffected. So if I have an integer variable int a whose value is 10 as address 1000. Okay, this is in the main method. Which method is this? It's in the main method. So if I display this a, what will be the output? Or in JavaScript, if you console.log a, what will be the output? 10, right? If I pass this to a function called test a, what type is a? A is of what type? Integer type. Let's take Java. Let's take Java. Let's not take JavaScript. Let's take Java. So what type is a? So we have a test function also. Test will take this value of a in, let's say, in b. So is b also pointing to 1000, or b is pointing to a different memory address? Because primitives are passed as call by value. So where is b now? At 2000. What is the value of b? So if I come in test, and as I come in test, I display the value of b. What should be the output? 10. Then I go and modify the value of b. So what becomes 99? And then I again display b. What will be the output after modification? 99. And then after the function call, I again display a. What should be the output? 10. So what should be the total output? 10, 10, 99, 10. Correct? Because when I pass a to the function test, I passed a copy of that variable, not the original variable. Because by rule, primitives are passed as value. Right? So keeping this idea, non-primitives are passed as ref. So in call by value, so if this is Shah Rukh Khan and if he's doing a stunt, so who does the stunt? The body double or the stuntman, right? If God forbid the stuntman gets injured, does Shah Rukh Khan also get injured? No. So whatever changes happened has happened on the copy. Original remains intact, right? But in the case of call by reference, what happens? Original gets impacted. So non-primitive such as arrays and objects, such as arrays and objects, they are non-primitive. So when I pass a non-primitive, it goes by
reference. Okay, so if I have a student object, okay, so let's say if I have a student object whose roll number is 101, S name is Virat, and percentage is 78.5. Okay, now think of it as a JavaScript object or Java object, it's up to you. So where have I made this object in? Where? So this object is at address 1000. Who is pointing to it? What is the reference name? Student, right? So what is the content? Now I pass this object to, so now before displaying, I display SOP student dot roll number. What will be the output? 101, correct? Now I pass this object to a test method. Okay, now let's write the test function. So what have I passed to test? Object of which class? Student class. So let's say I take student 2. Now where is student 2 pointing? To a new memory location or at the existing memory location? At the existing, because objects are passed as reference. So student 2 also pointing to address. So now I come here and I say student 2 dot roll number equals to 999. So what gets modified? Of this, and this object gets modified, right? So what does this prove? By referencing, we can take access of that object somewhere else, and if we modify it at that other location, the original value will also be changed. Make sense? I had given you all about the ATM. You have a branch, you have an account in Pune, shows balance 10,000. You go to Delhi, you withdraw 5,000 from there. When you come back to Pune, what will the balance show? 5,000 or 10,000? Because the Delhi ATM and the Pune account are one unit. You make changes anywhere, the original will be impacted. Make sense? So you got the concept of reference. This is what is the crux I want to start with. Have you got the concept of reference? Means we can take reference of a variable at some other location, modify it at the other location, but the original value will be impacted. Got it? So JavaScript works on this phenomena. So what JavaScript does is it takes access or it takes reference of a HTML component in JavaScript. So once I have that access in JavaScript, I will manipulate in JavaScript and the original HTML element will be modified. Making sense? So what happens is, what is the actual real world implementation of JavaScript? You have a HTML, okay? So you'll have body, okay? Let's say we also have a script tag. So this area is my HTML area and this area is my
JavaScript area, correct? Now I have a HTML element. Which element do I have? H1 element, where I will take the access of that in JavaScript, the reference, into a variable. So if I take let heading element equal to, and I take reference of which heading? This H1. Now how we take reference? That is today's agenda. So now this heading element is pointing to the H1 element of HTML. If I modify the heading element, what will change? If I modify this heading element, so if I say, okay, name the variable sensibly, heading element dot inner text. What is this called as? Welcome to FSD course is called as inner text. If you have, I think that is called inner HTML. So if I have a div, in that div I have a p. So this p is text or some HTML component. So I want to change this. So I will say inner HTML. Now what am I changing? So inner text. So I can say inner text equals to Java and React. So when I say Java and React, where am I changing the content in? Java script. When I refresh the browser, what will change? This H1 tag text will change. That is what JavaScript is actually for. So how we can take access of a HTML element into our JavaScript, that is today's agenda. So you'll have heard of get element by ID, get element by tag name, get element by class name. That will study in a bit detailing. Okay. So how normally we do that is, this is H1. So I can say, and this is on my HTML document. Okay. So I can say document. So when I say document means the entire body, the entire web page dot get element by tag name. By what? And which tag? So I will get access of the first element which is of type H1, and which is this. Store it in this variable. Modify this. You modify the JavaScript variable, and the HTML element will be modified by virtue of call by reference. Making sense? So how many ways we have of accessing a HTML element into JavaScript? So I made a small documentation for you guys. Yes. First, first H. We'll see. We'll see into that. Okay. So for all, we'll have to see other options we'll have. Okay. So let's check. So let's make a new folder. Day 4, and we'll make a HTML page. Okay. I would want to call it as selectors dot html. Okay, got it. So let's try to smart the simple one. H1
welcome to FST script. Okay, so I want to access by this tag name. What I'll do, let heading element equals to document dot get. See over here, you see this, as I see a get element by id, get by class name, by name, by tag name. I'll say what, tag name, which tag, h1. Okay, so this will give me the first h1. What will this give me? The first h1. And now if I say heading element dot inner text equals to Java, Spring Boot, and React. Okay, so I'll comment this out first. We'll do a save and we'll do a go live and check as to what you are seeing on screen. Okay, so we are seeing the original HTML. Now let me comment this out and do a control S. Okay, now if I do over here, so let's inspect and see what is the problem. ये वाल तो किया ना इसका, कंसोल में भी कुछ नहीं हो रहा है. डॉक्यूमेंट अगर एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम h1 और ओके, तो इसको पहले कंसोल डॉट लॉग कर लो. इसको हेडिंग एलिमेंट देखते ही आ रहा है क्या? तो आ रहा है, एक एचटीएमएल कलेक्शन आ रहा है. ओके, तो एक कलेक्शन लेके आ रहा है. क्या लेके आ रहा है वो? कलेक्शन. तो हमने कौन सा मॉडिफाई करना है? पहले इंडेक्स वाला, राइट. तो क्या कर देंगे, जीरो इंडेक्स वाला आ गया. तो वो जितने भी h1 है सबको लेके आ रहा है. हमने कौन सा इंडेक्स मॉडिफाई किया? तो अगर अभी यहाँ पर दो होते तो और तीन होते तो अब बोलो. तो बाकी दो तो अपने जगह पे आ जाते, राइट. हेडिंग टैग और ये चेंज हो. नाउ आई वांट टू चेंज दिस आल्सो. देन व्हाट वुड आई डू? इंडेक्स 1. कंट्रोल एस हो गया. एंड चेंज द थर्ड वन आल्सो. आ गया. तो टैग नेम से जो रिटर्न कर रहा है हमको, वो नोड लिस्ट दे रहा है. क्या दे रहा है? नोड लिस्ट एक एरे जैसा ही होता है, बट द लिमिटेड फीचर ऑफ एन एरे. एरे में वी आर सीन दैट मेनी फंक्शंस, अप्रॉक्स 20 प्लस फंक्शन आते हैं. नोड लिस्ट में लेंथ है और एरे के इंडेक्सेस जैसा है बस. तो कितने आ गए इसके अंदर एलिमेंट्स? तो अगर हम उसका लेंथ डिस्प्ले करेंगे तो क्या दिखा रहा है वो? 3. तो वो एरे जैसा है, एरे नहीं है. उसमें पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट,
मल्टीप्लाई, स्लाइस, ये सब फंक्शन ऑपरेट नहीं हो। ओके, तो ये तो मैंने टैग नेम से ले लिया। So now all possible. So if I want to get the first h1 only, so I can say id. Okay, and इसको हम कुछ नाम दे देंगे, तो let's say 1 दे दिए। Now if I want to get the element by the id only, what, how do I do that? So let first heading equals to document dot get element by id। कौन सी id? हाँ, 1। तो अब ये इसके अंदर क्या आ गया, किसका रेफरेंस आ गया इसके अंदर? परसेंटेज। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक कुछ और चेंज करना चाहते हो और चेंज कर सकते हो। ओके, तो dot inner text you can change to anything. Okay, I'll just change it now. Okay, changes. So when do we use this? When I want one particular from the entire DOM tree, on the entire document object model, I want to uniquely get one element only. I'll go with what? Get element by id। तो ये सिर्फ एक ही id देगा। ठीक है, ऐसे ही गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी है, राइट। तो अगर हमने इसको क्लास ऐड कर दिया, ये 2 क्लास में है, ये भी 2 है और ये भी क्लास 2 है। अभी तो अभी तो इफ आई से लेट द make a variable for them, class 2 elements, will I get that? Document dot get element by class। कौन सी क्लास? अब इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 2 आ गए। कंसोल डॉट लॉग चेक कर लो, 2 आ गए। अब मुझे दोनों का टेक्स्ट दिखाना है कंसोल पे। दोनों में टेक्स्ट क्या है वो दिखाना है कंसोल पे। कैसे करेंगे? तो इसको फॉर ईच लगा दो। क्या लगा दो? फॉर ईच लगा दो। इसको इटरेट कर लो। कैसे? ठीक है, तो कुछ ब्राउजर्स जो है इसको फॉर ईच सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। एरे को फॉर ईच सपोर्टेड है, राइट, बट नोड लिस्ट को फॉर ईच some browser support, some do not support। modern browser support for each on the, so now what has come in the first अभी एलिमेंट में क्या है? हाँ, कौन सा वाला? आईटी वेदांत है, राइट। अभी अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं, एलिमेंट डॉट इनर, तो क्या आंसर आएगा? आईटी वेदांत ऑल्सो एंड एफसी रोड ऑल्सो, राइट, बिकॉज आई एम इटरेटिंग, राइट। देखो क्या बोल रहा है वो, क्लास 2 एलिमेंट्स फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। क्या कर लो इसको फिर अभी एरे बना लो। क्या बना लो? हाँ, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर लो, एरे का है ना, एरे डॉट फ्रॉम है ना, एरे डॉट फ्रॉम है ना,
किससे बना लो, एरे किससे बना लो, एरे क्या हो गया, ओके रिटर्न नहीं कर रहा है इसके लिए, ब्रैकेट्स है ना, और इसका रिटर्न करता है, ओके ये निकाल दो, ठीक है, अभी भी आ रहा है, ठीक है, तो अभी हाँ, तो क्या करेंगे पहले, एरेज डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम किससे, इससे एरे बना लो, अब उस पर फॉर ईच लगा दो, ठीक है, मेक सेंस, सो नॉट ऑल ब्राउजर्स सपोर्ट फॉर ईच ऑन नोड लिस्ट, बट एरेस को सब सपोर्ट करते हैं, तो क्या किया उसको, उससे एरे बना लिया, उसको फॉर ईच कर दिया, ठीक है, यस और नो। ऐसे ही फॉर ईच को हम अगर इंडेक्स दे दें, क्या दे दें हम, you also provide an index, right, so I only want to see the index one वाला, what I'll do then, if index is one ना, ओके, इसमें इंडेक्स नहीं आता, इसमें इंडेक्स किसमें आता है फिर, मैप में आता है, किसमें आता है, मैप वाले में इंडेक्स आता है, बट फिर वो इट विल रिटर्न इसमें, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसमें इंडेक्स वाला मामला नहीं है, दिस इज जस्ट सिंपल एलिमेंट, so do not use index over here, yes, so I've got all the elements of class 2 into this class 2 elements, what it has given me is a node list, I want to apply for each, so I'll have to convert it into a array, so I say array from this and then iterate through it and change it, ठीक है, अब इनके इनर एस्टिमल चेंज करना है तो ओके, so you can change, how will you change that, element dot inner text, okay, so whatever if you say test, तो test आना, am I understood, yes no maybe, so you all know how to fetch by class name, so by class name there is always a possibility कि many हो सकते हैं, तो LHS में क्या रहेगा, node list, ऐसे ही when I say get element by tag name, तो many हो सकते हैं, तो क्या LHS में क्या रहेगा, node list, ठीक है, so let's see what this document says, by ID किया, okay, by tag name is sensitive, what do I mean by sensitive, what do I mean by insensitive, insensitive ये रहता है कि एक बार मैंने उसको फेच करके जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में ले लिया, उसके बाद उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं आई डोंट नो, so at 10:30 I fetched that HTML element into a JavaScript variable, 10:45 को किसी ने HTML एलिमेंट को चेंज किया तो मुझे वो सेंस नहीं होता, बट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या है, सेंसिटिव है, यानी उसने फेच करने के बाद भी अगर किसी ने मॉडिफाई किया तो भी उसको वो सेंस कर लेगा, ओके, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है क्वेरी सिलेक्टर, सबसे वाइडली यूज कौन है, क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर सब पे काम करता है, हाँ, सेंसिटिव का क्या होता है कि
सेंसिटिव और केस सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स से आई टॉक विद रिगार्ड्स टू डेटाबेस। डेटाबेस में रिकॉर्ड है, ठीक है, रोल नंबर, नेम और परसेंट। ये स्टेटस है 9 बजे का। 9:30 को मैंने सिलेक्ट करके डेटा अपने ले लिया, रिजल्ट सेट में, अपने एप्लीकेशन में ले लिया, तो क्या होता है वो? रिजल्ट सेट। तो अभी रिजल्ट सेट में डेटा क्या है? 40 और 78.5, ठीक है। कितने कितने बजे? 9:30। 10 o'clock को किसी ने डेटाबेस को अपडेट कर दिया, अपडेट क्वेरी फायर किया डेटाबेस के अंदर, और परसेंटेज बना दी 88.5, करेक्ट। डज माई रिजल्ट सेट अवेयर ऑफ दैट? यस और नो? तो इसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। क्या बोलते हैं इसको? एक बार मैंने फेच कर लिया, उसके बाद वहां क्या चेंजेस हो रहे हैं मुझे मालूम, तो इसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। और अगर वहां क्या चेंज हो रहे हैं मुझे यहाँ दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? सेंसिटिव। तो टैग नेम क्या है? सेंसिटिव है। आपने रेफरेंस लिया, उस वक्त कुछ और था इनर टेक्स्ट, फिर किसी ने इनर टेक्स्ट को चेंज कर दिया, वो उसको भी तुरंत सेंस कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो टैग नेम इज सेंसिटिव। हाँ, क्वेरी सेलेक्टर नॉट सेंसिटिव। देखते हैं आगे। क्वेरी सेलेक्टर कैन बी यूज फॉर ऑल नाउ। क्वेरी सेलेक्टर कैन बी यूज फॉर all of the above. You can use that for all of the above. So let's take some data. div लेते, एक div आ गया, दो div आ गए, इस div में एक h1 है, इस div में एक h2 है, एक p टैग है, ओके, और यहाँ पर भी एक p टैग है। तो ओके, so let's take some data and populate this. So I have two divs, और nested div भी कर सकते हैं, ओके, and whatever data you all want to put, you all can keep on putting as per the data you want, ठीक है। when I say document means इन सब से रीड कर लेगा। डॉक्यूमेंट मीन्स ये सारे टैग्स को वो रीड कर लेगा, ओके। अब इसके अंदर कुछ पॉपुलेट करते जाओ। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सेव दिस। ये ऐसा कुछ एलिमेंट दिख रहा है आपने, लेटर ऑन विल सी। so now if I say document dot query selector, अब मुझे इनको इनके क्लास से रीड करना है, तो वो h1 जिनका क्लास समझो मैंने रेड दिया है, ये h1 भी रेड में है, ये p भी रेड में है,
और ये H2 भी रेड में है। तो कितने रेड वाले क्लासेस है? तो आई कैन फेच all the classes. Okay, so now I'll have multiple, so I will say query selector. जब सिंगल हो तो query selector कर लो, जैसे id वाला है। id वाला कितने हैं? 1 वाले कितने हैं? एक है। तो id कैसे देते हैं हम लोग? डॉट से क्या हैश से? क्लास से देते हैं ना। तो क्या कर रहा है ये? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कौन सा? id 1, उसको ले लो एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट। ओके, id 1 element, and here you can manipulate that. इसमें आपको कुछ इनर एचटीएमएल डालना है, तो वो तो एक ऑलरेडी एक हेडिंग है। अगर वो div होता, div, अगर ये id1 वाला एक div टैग होता, क्या होता? div टैग। अब उसमें सिर्फ टेक्स्ट है। I could have put a p tag inside that by saying inner html, and what a p tag, what is it showing over here right now? id1 welcome to fsd. I can say welcome to, हाँ, जो भी डबल कोट में है वो एक html बना देगा, उसका एक p टैग बना देगा, उसको डाल दिया गया इनर html किसके? id1 एलिमेंट। id1 एलिमेंट किसको रेफर कर रहा है? डॉक्यूमेंट से। कौन सा id? 1। 1 वाला id कौन सा है? ये वाला div 1 वाला है। उसमें अभी क्या है? एक वेलकम टू fsd है। फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा? एक p टैग वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपर, कंट्रोल एस, एक p टैग बन गया, हेडिंग निकल गया। तो क्वेरी सिलेक्टर अगर मल्टीपल है, जैसे टैग नेम के और क्लासेस के कैसे आते हैं? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम सिंगल आता है क्या? नोड लिस्ट आता है, नोड लिस्ट। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम सिंगल क्या नोड लिस्ट? गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। there can be multiple elements with the same class, so what does it return? node list। बोलते इसको नोड लिस्ट। तो उसके लिए हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्या है? क्वेरी सिलेक्टर। तो अब मुझे रेड क्लासेस के सारे एलिमेंट्स चाहिए जिनका क्लास रेड है। तो ये h1 का रेड है, ये p का रेड है, और ये h2 का रेड है, राइट। अब मुझे इनका रेफरेंस चाहिए, तो विल आई डू दैट? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। कहां से? डॉट, ऑल द रेड एलिमेंट्स will come where? Will come in which variable? Red class elements, and then I can do a for each on it, or convert it to into an array, and then do a for each. Okay, so let's try. For each काम करता है क्या? हाँ, कौन सा ट्रेडिशनल फॉर्म? हाँ, वो लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को उसको इंडेक्स से रेफर करना है ना। हाँ, तो फिर ट्रेडिशनल फॉर लूप लगा दो। लेट I equals to 0, I less than red class elements dot length, and I plus। और अभी
एट क्लास एलिमेंट ऑफ आई डॉट, जो भी आपको करना है, इनका इनर एचटीएमएल चेंज करना है, तो एक लेट से सबको मैं एक बोल्ड हेडिंग में दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सबको वेलकम कर रहा हूँ मैं, ऐड हुआ कंट्रोल एस, तो सब क्या हो गए, ये भी वेलकम, ये भी वेलकम, और ये भी वेलकम। तो द क्रक्स इज we can take access of all or whatever HTML component I want into my JavaScript. So if you want by ID, use query selector, and if you want return as a node list, those tag which will return a node list, go for query selector all. ठीक है, जहां पर याद है जिसे आप उसमें कर रहे थे करंट ऑपरेशंस में, स्टूडेंट और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो जब मैं स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ सेव स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, रिटर्न टाइप क्या है, और अगर मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट गिव द रोल नंबर फेच द स्टूडेंट, तो रोल नंबर सिंगल स्टूडेंट, और फिर मैं दे रहा हूँ परसेंटेज एंड मार्क्स मोर देन दिस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो ऐसे ही आईडी क्या होगा, एक क्या मैनी, सिंगल, तो क्या यूज कर लो, क्वेरी सिलेक्ट, और जहां पर मैनी के आने के चांसेस है, नोड लिस्ट के आने के, तो क्या यूज कर लो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अगर आईडी पे कर रहे हो तो आईडी पे कर दो, क्लास पे कर रहे हो तो क्लास पे भी कर दो। समझ में आ रहा है, आप उसको टैग नेम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे सारे डिव एलिमेंट फेच करने हैं, तो कितने डिव एलिमेंट है, एक, दो, तीन, कितने डिव एलिमेंट है, तीन। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक बहुत वर्सेटाइल वे ऑफ फेचिंग, ओके। तो लेट ऑल डिव एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और क्या पास कर दिया उसके अंदर, फिर अगर डॉट लगा दूं तो आईडी, हैश लगा दूं तो आईडी, डॉट लगा दूं तो क्लास, और कुछ नहीं लगाओ तो टैग नेम। तो अभी कितने डिव वाले हैं हमारे पास, तीन। तो अगर मैं अभी सी लॉग करूं ऑल डिव एलिमेंट का लेंथ, तो क्या आएगा आंसर, चार दिखा रहा है, चार डिव है, ऊपर भी डिव था ना एक, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो और भी वेरिएशंस है, काफी वेरिएशंस है इसके अंदर। ये आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है, और वन क्या है, वैल्यू। तो आप इसके अंदर उसके एट्रीब्यूट से भी फेच कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप क्या हो गया, एक टेक्स्ट भी हो गया, उसका भी आईडी दे देते T1, इनपुट टाइप टेक्स्ट है T2, और इनपुट टाइप क्या है, पासवर्ड है, उसका दे देंगे P। अब मेरे पास कितने इनपुट टाइप है, तीन है। तो अगर यहां पर मैं कर दूं डिफ की जगह पे इनपुट, क्या कर दूं, तो क्या होगा, लेट ऑल इनपुट एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, समझ गया क्या, कौन सा इनपुट, कितने इनपुट आ गए भाई,
ओके, डॉट लेंथ ना, तीनों आ गए ना। इनपुट, इनपुट और इनपुट टू और T1 T2 और P1। ठीक है, अब मुझे वो लेना है इनपुट, जिसके अंदर टाइप क्या हो, टाइप एट्रीब्यूट हो, क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, टाइप एट्रीब्यूट हो। तो कैसे करेंगे, इनपुट और जिसके अंदर क्या हो, एक एट्रीब्यूट हो, कौन सा, कौन सा एट्रीब्यूट हो, इनपुट टैग हो और उसका एट्रीब्यूट क्या हो, टाइप। तो कितने इनपुट है जिस टाइप वाले, हाँ भाई। ओके, अगर हम यहाँ पर एक इनपुट बना देते हैं, उसको सिर्फ आईडी देता हूं मैं T3। ठीक है, टाइप दिया गया इसको। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, क्या आंसर आएगा, कितने एलिमेंट है, हाँ 4 है ना, 15 16 17 18, 4 है ना, 4 आ गए, नोड लिस्ट आ गई, दिखा है टाइप क्या है उसका, नोड लिस्ट है ना। ओके, अब अगर मुझे वही इनपुट चाहिए जिसका एक एट्रीब्यूट टाइप हो, जिसका एट्रीब्यूट क्या हो, टाइप हो, तो कैसे करेंगे, वही इनपुट जिसका एट्रीब्यूट क्या हो। अब कितने आएंगे, इनपुट टाइप कितना है, हाँ टाइप वाले कितने, टाइप वाले 3 आएंगे, 3 हो गया। तो सिर्फ टैग नेम नहीं, उस टैग में वो एट्रीब्यूट है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ टैग, टैग का एट्रीब्यूट भी और एट्रीब्यूट और वैल्यू भी, गेट ऑल एलिमेंट्स ऑल इनपुट, ये क्या था, ऑल डिव्स ऑल इनपुट, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या है, टेक्स्ट, ये भी कर सकते हैं, गेट ऑल टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट्स। अब टेक्स्ट इनपुट कितने हैं उसमें से, कितने हैं, 2 है, तो सिर्फ 2 आ गए। So query selector is so versatile. I mentioned all this over here. ठीक है, तो ये सब हम होते हैं CSS सिलेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसको क्लासेस को, आईडी को किसके लिए यूज करते हैं, CSS के लिए। तो क्वेरी सिलेक्टर ये एक ही लिस्ट, ये फाउंड मतलब आईडी, और आईडी क्या होता है, यूनिक, तो इसके लिए क्या यूज कर लिया, क्वेरी सिलेक्टर। टैग मल्टीपल होते हैं तो ले लिया क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, तो ये देखो, वेलकम टू IT वेदांत फुल स्टैक कोर्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। So once you take the element का access, you can also change the style, dot style, and जावास्क्रिप्ट में जो CSS के एट्रीब्यूट्स है वो कैमल केस में है, किसमें है, CSS में कैसे है, कबाब केस में है ना, बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो जावास्क्रिप्ट में वो एट्रीब्यूट किसमें है, कैमल केस में। तो जो आपका एलिमेंट आ गया उसका डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो हमने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स फेच कर लिए, ओके टेक्स्ट पे तो सेंस नहीं करेगा वो, डिव पे करते, किस पे करते हैं, डिव पे कर लिया ना। तो कितने डिव आ गए हमारे पास इधर, 4 डिव आ गए। तो चारों का बैकग्राउंड कलर रेड करना है, क्या करना है, चारों का बैकग्राउंड कलर
रेड। तो अभी इस पे तो फॉर ईच काम कर नहीं रहा है, राइट? तो कर ले, अपन एरे से कर लेंगे। एरे डॉट फ्रॉम, फ्रॉम होम ऑल डिव एलिमेंट्स। अब हो गया। अब लगा देंगे फॉर ईच, एक एक डिव किस में आ गया, डिव एलिमेंट में आ गया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, डिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कौन सी स्टाइल, बीजीसी, बीजीसी, बीजीसी आया। इक्वल्स टू क्या कर रहा हूं मैं, किन के, किन के कर रहा हूं, सारे डिव एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर रेड कर रहा हूं। हो गया। ओके। तो मुझे सिर्फ जो ऑड इंडेक्स है उनको रेड करना है, इवन को येलो करना है। तो अब ये आ गया है, एरे हो गया ना। और एरे के, और यहाँ पे फॉर ईच ही है ये। हाँ, यहाँ पर ये फॉर ईच डजंट कंटेन अ इंडेक्स, फॉर ईच डजंट contain a index, so I wanted the index। और इस कुछ कुछ में दिखा रहा है कि इंडेक्स रहता है करके, कुछ कुछ जगह दिखा रहा है कि इंडेक्स है करके। तो क्या कर देंगे, इफ इंडेक्स मॉड विथ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑड वाले, इवन वाले, एल्स कंट्रोल एस करता हूँ, दिख रहा है। जो ऑड वाले हैं वो क्या हो गए, येलो हो गए, और जो इन वाले क्या हो गए। So see, I did a quest getter all, fetched all my div elements in this variable, displayed the length, so it gave me 4, then converted this into an array, and then did a for each. And I can also pass the element along with the index. So I said if index mod with 2 equal to 0 means even index. तो even index है तो क्या करो, येलो कर दो। तो 0 और 2 क्या कर दिया उसने, येलो कर दिया। और 1 और 3 क्या कर दिया उसने, इक्वल टू 2, मतलब तो इवन का रेड हो रहा है, 0 इज इवन, तो हाँ रेड कर रहा है, ठीक है। एल्स येलो कर रहा है, हाँ सही है। So once you have that element access in JavaScript, you can do whatever you wish to do. Change the style, change the inner HTML, blah blah blah. So it's just a matter of getting that access into JavaScript. That is the main task. Okay, and we have all these ways of fetching it. So I showed you all how to fetch by class, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, query selector all होगा। ओके, अब इसके अंदर देखो डिसेंडेंट्स भी है। तो क्लास और फिर क्या देना, ये पी, यानी ये पी उस क्लास में कहीं भी मिल जाए। कहीं इसमें देखो, इधर अच्छा लिखा होगा मैंने, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट आर इनसाइड स्पेसिफाइड पेरेंट नो मैटर हाउ डीपली नेस्टेड। तो इसका मीनिंग क्या है, डॉट मतलब क्या, उस क्लास में क्या मिल जाए, भले वो कितना ही नेस्टेड क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं। तो
अगर मेरी यहाँ पर div है, तो div कौन सी है, और मुझे ये प्रोग्रामिंग कोर्स रीड करना है, क्या करना है, तो अभी मेन क्लास में का डॉट मेन और h3 चाहिए, तो आप वैसा भी फेच कर सकते हो, वैसा भी फेच कर सकते हो। तो ये क्या है, डिसेंडेंट। तो कैसे करेंगे हम लोग, लेट h3 of main class, h3 of, so how to do, document dot query selector all, और क्या, डॉट मेन, तो ये क्लास हो गई, उस क्लास में क्या चाहिए मुझे, कंसोल डॉट लॉग, तो कितने हैं, कितने हैं, एक ही है ना, वो आ गया, ठीक है। क्या क्या लिखा है उसके ऊपर, मेन क्लास का जो h3 क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग कोर्सेज, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे टेक्निकल कोर्सेज, क्या कर देंगे, कैसे कर देंगे, h3 डॉट h3 ऑफ मेन क्लास डॉट इनर HTML कर दो, इनर टेक्स्ट कर दो, इक्वल्स टू क्या, कंट्रोल एस, क्या हुआ कुछ, कंट्रोल एस, प्रोग्रामिंग कोर्सेज दिखा रहा है ना, कौन सा एलिमेंट को हिट किया उसने, पी टैग है क्या, h3 है, हाँ, h3 ऑफ मेन डॉट क्लास, बट सेंस कर रहा है, अगर मैं इसको, ओके, इट इज शोइंग मी डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल ना, है ना भाई, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑल आया है ना, तो कौन से इंडेक्स पे आया है वो, जीरो इंडेक्स, अब ठीक है, तो या तो उसको लूप लगा के इटरेट करके करो, या उसके इंडेक्स से करो। तो ये क्या था, इस क्लास में ये कहीं भी मिल जाए तो स्पेस दे दिया, क्या दे दिया, स्पेस, और एक पेरेंट चाइल्ड भी है, क्या है, ये डिसेंडेंट है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन डिसेंडेंट, सिलेक्ट, और ये है डायरेक्ट चाइल्ड, क्या है ये, डायरेक्ट चाइल्ड, उसी का चाइल्ड होना, ठीक है, ये उसके डिसेंडेंट्स में कोई भी चल जाएगा। ये क्या चाहिए, इमीडिएट चाइल्ड, डीएस के अंदर जो होता था, ट्रीज पड़ा है डीएस के अंदर, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, तो अगर ये रूट है, तो ये नोड है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 के चाइल्ड कौन है, तो वो सिर्फ 2 और 4 में दिखा जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है, इट विल नॉट लुक इन द एंटायर ट्री ऑफ 1, विल ओनली लुक इन, देखो,
So if I give dot 1 or डॉट 1 स्पेस येलो, मतलब क्या? 1 से शुरू करो और कहाँ भी येलो मिल जाए तो ले लो उसको, तो क्या क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4, 5, 6 और 8। बट अगर मैं करूं डॉट 1 राइट ग्रेटर देन साइन और फिर येलो, यानी 1 के इमीडिएट चाइल्ड में येलो कौन है वही ले लो, कौन है? सिर्फ 5 आएगा। सिर्फ कौन आएगा? तो डॉम एक ट्री बनती है ना, डॉम क्या बनती है? एक ट्री ही बनती है इंटरनली। अब कौन आएगा? डॉट 1 का ग्रेटर देन साइन येलो, मतलब 1 का इमीडिएट चाइल्ड में येलो कौन कौन है? 5 है और 9। सही है, समझ में आ रहा है? सो इफ आई कम हियर एंड टू ट्राई द ग्रेटर देन साइन, तो मेन के इमीडिएट पी कौन है? इमीडिएट पी ये फेब्रुवरी मार्च है क्या इमीडिएट पी? ये आएंगे क्या? तो मेन के इमीडिएट पी कौन है? जो डायरेक्ट उसके चाइल्ड है, तो ये एच उसका चाइल्ड है और ये एच उसका चाइल्ड है और ये डिव भी उसका चाइल्ड है और दो पी टैग है उसके। तो अभी मैं करूँ मेन आर ओ पी, क्या करूँ मैं अभी? तो कितने आएंगे बोलो? तो वो कैसे निकालेंगे बोलो? लेट द पी चाइल्ड ऑफ मेन, है ना? पी चाइल्ड ऑफ मेन क्लास, क्या क्या आएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट कोई सिलेक्टर ऑल, कैसे करने का? सिंगल कोट में डॉट मेन क्लास का नाम और फिर ब्रैकेट में फिर क्या? तो क्या आएंगे? वही पी जो मेन के, तो कितने हैं वो? कितने आएंगे? तो लास्ट का प्रिंट 2 आना चाहिए। आया? तो कितना वर्सटाइल है ये क्वेरी सिलेक्टर। तो मैंने जितने परम्यूटेशंस बताने थे सब बता दिए, ठीक है ना? चाइल्ड सिलेक्टर भी कर सकते हैं आप। तो डॉट पेरेंट क्लास एरो पी सिलेक्ट ओनली डायरेक्ट चाइल्ड पी एलिमेंट्स ऑफ द डॉट कंटेनर क्लास, ठीक है? एट्रीब्यूट तुमको बताया मैंने। इनपुट वो इनपुट जिसका टेक्स्ट है, तो इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, पासवर्ड और टेक्स्ट। तो सिर्फ क्या दिखाएगा? इनपुट जिनका टाइप है, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है? और अगर टाइप क्या हो? टेक्स्ट हो, तो सिर्फ दो आ जाएंगे, राइट? डॉक्यूमेंट विल सर्च इन द एंटायर डॉम ट्री। ओके, अब देखो मैंने ठीक है, तो यहाँ पर H3 है, ये सुनो H3 है ना, और यहाँ पर भी H3 है,
ये सोनो। और यहाँ पर भी H3 है। तो कितने H3 है मेरे पास टोटल? H3, H3 और H3, तीन है। चलो, तो अभी अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, तो क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट HT ना, तो क्या ऑल H3 एलिमेंट्स ऑन द पेज, तो कितने हैं? तीन है, तीन आ गए। अब मैंने ये डिफ को रीड किया, इसको डिफ को रीड किया, मेन को, ठीक है। मेन डिव रीड कर रहा हूँ, कैसे रीड करूँ? कैसे करेंगे? तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा? डॉट, डॉट मेन ना, तो कितने हैं मेन डिव? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? हाँ, डॉट, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आ रहा हूँ उसमें। तो पहले मेन ले लिया मैंने। तो अब ये जो मेरा एलिमेंट है, मेन डिव एलिमेंट, ये कौन से एरिया को रेफर कर रहा है अभी? इस डिव में। अब इसके अंदर मैं बोलता हूं गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर H3, तो सिर्फ ये इसके H3 को लाके देगा। डॉक्यूमेंट के बोलता हूं तो पूरे डॉक्यूमेंट के H3। अब अगर मैं करता हूं वही काम जो मैं यहां कर रहा था, यहां पर मैं क्या यूज कर रहा था? डॉक्यूमेंट। अब यहां पर मैं करता हूं मेन डिव एलिमेंट डॉट, कितने हैं इसके पास H3? बोलो। हाँ, एक है, तो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं। कितने इसके पास? तो लास्ट में आंसर आया था अपना 1, राइट, क्योंकि मेन डिव एलिमेंट कितना है? तो 3 के बाद एक 1 आया था, राइट। अब मैंने मेन डिव एलिमेंट को बोला कि तेरे पास H3 कितने हैं? 1 है। क्या बोल रहा है? इज नॉट अ फंक्शन, क्या बोल रहा है? मेन डिव एलिमेंट का क्या किया मैंने? एक, ठीक है, अभी आ गया ना, इस पूरे का लेंथ है ना, वही तो किया था। हाँ, क्यों? ये आ गया ना, अभी 8 इस पे कर दो तो क्या आता है?
main div element is not a function. क्यों सर? ओके ओके, अपने को यूनिक चाहिए ना, अपने को देखो, ओके समझ में आ रहा है मुझे, समझ में आ रहा है। ये आपको क्या देगा, लिस्ट देगा क्या ऑब्जेक्ट देगा? लिस्ट देगा। और अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? जीरो ही है। तो इसको फिर जीरो से करो, वो जो हम कर रहे थे ना इधर। हाउ टू डू अंडू? कंट्रोल वाई ना? नहीं हो रहा है। हाँ, आएगा। तो ये जो हम लोग ने किया, ये क्या आया? लिस्ट आया ना? तो ऐसे दे कैन बी मोर ऑल्सो। तो ये जो H3 है वो उसका जीरो वाले पे काम करना है ना अपने को, याद है? लिस्ट पे आया ना वो। तो इसके लिए जो फर्स्ट डिव है उसमें कितने H3 है? अब इसमें एक ही डिव आया है, इसमें ये एक ही डिव आया, कौन से इंडेक्स पे गया? तो जीरो इंडेक्स वाले पे कितने H3 है? वो करना चाहिए था अपन ने। समझ में आया तुम लोगों को? ये देगा अभी अपने को डॉट लेंथ। दिस शुड गिव अस ए। ए कहां से आया? अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है वो? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेन टैग वाला आ गया, और तो ये आ गया मेन डिव। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इटरेट करते हैं। तो एक एरे डॉट फ्रॉम बनाते हैं, किससे? मेन डिव वैल्यू। इस पर लगाते हैं फॉर ईच। अब एक एक डिव किस में आएगा? एक एक डिव किस में आएगा? डिव एलिमेंट में आएगा। अब इस एक एक डिव एलिमेंट में कितने H3 है? तो वो कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्वेरी सिलेक्टर कौन सा? H। लेट से उसका मैं इनर HTML चेंज कर देता हूँ, ट्रिपल ए, कंट्रोल एस। दिख रहा है? सिर्फ ये ट्रिपल ए चेंज हो रहा है। कंट्रोल एस, सिर्फ एक ही पार्ट चेंज हो रहा है। तो ये हल्का बने। पहले क्या किया मैंने? क्वेरी सिलेक्टर ऑल किस पे लगाया? मेन। तो उसने मुझे वो सारे एलिमेंट्स दिए जिसका क्लास क्या है। तो अभी हमारे पास मेन कितने क्लासेस पे है? एक ही क्लास पे है। तो एक लिस्ट ही आया ना, पर इंडेक्स जीरो पे आया। उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? एरे में। और अभी ये डिव एलिमेंट में कौन सा आया? फर्स्ट डिव एलिमेंट आया, उसमें से मैंने किसको निकाला? ठीक है, तो डिव एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यानी सिर्फ उस डिव एलिमेंट का H3, डॉक्यूमेंट का H3 नहीं। तो अभी अपना स्कोप नैरो हो गया। उसका क्या चेंज कर दिया मैंने? ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं इधर, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो ओवर हियर। document will search the entire, but element dot will search within the element only। आया तुम लोग को वेरियस वेज ऑफ फेचिंग? इतना समझ में आ गया? बस ये मोर देन सफिशिएंट।